Genius, 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 genius gone. Genius, 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 genius gone. Every book you read adds a millimeter to your mental horizon. With the famous words of a renowned scholar and scientist, Dr. Lala Hardayal, I welcome all you participants and guests over here on this stage of Abhi Tak channel that is brought by Sanskrit Production. Out of thousands of students who appeared in this Moradabad region in the competition of Genius Con Season 3. So out of those, only 6 contestants are present over here. After winning out of them, उन हजारों बच्चों के बीच में से इन 6 प्रतिभागियों ने अपनी विद्वता का परिचय दिया, सफलता पाई और इस जीनियस कॉन सीजन 3 के मंच पर यहाँ सीनियर वर्ग में यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज की। मैं उनके साथ पधारे उनके गार्जियंस और मंच पर अतिरिक्त हमारे जो मेहमान हैं उन सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इससे पहले कि मैं आप लोगों को इस विषय में नियम और कुछ इसके जो रूल्स हैं वो आपको बताने की कुछ कोशिश करूं, मैं इसको एक डिटेल आई जस्ट प्रेजेंट डिटेल ऑफ दिस कॉन्टेस्ट बिफोर यू that in our 6 groups 6 participants are there. 36 participants are there in the quarter-final round. Out of these 36 participants, 18 participants will go to second round, that is semi-final round. Out of those 18 contestants, 6 will go to pre-finale, and then out of those 6, at last 4 contestants will be there in the final round. It is all these 4 rounds that will be there of this Genius Con Season 3, and then after passing through these 3 rounds, the last one and the final one will be there, and the lucky ones. इससे पहले कि मैं आपको इस प्रतियोगिता के नियम से परिचित कराऊं, मैं चाहूँगा कि 6 जो प्रतिभागी यहाँ मंच पर अपनी शोभा बढ़ा रहे हैं वो है एक एक करके अपने विषय में अपना परिचय दें ताकि फिर इस प्रतियोगिता को आगे बढ़ाया जाए। I should like to tell you participants that out of 6 participants, 1 among you is absent for some emergent reasons. किन्हीं अपरिहार्य कारणों के कारण हमारे जो 5 प्रतिभागी जिनकी सीट आपके समक्ष रिक्त है, मिस्टर विशु आर्या, he is from SCM Children Academy, हल्दौर।
अपने किसी अपरिहार्य कारण से वो यहाँ प्रतियोगिता में भाग लेने में असमर्थ हैं, तो आप 5 प्रतिभागियों में से 3 प्रतिभागी जो सर्वोच्च अंक पाएंगे वही अगले राउंड सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल होंगे, और शेष 2 प्रतिभागी इस सेकेंड राउंड में जाने में सफल नहीं हो पाएंगे, वो इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। तो द कंटेस्ट गोज ऑन बिटवीन यू 5 पार्टिसिपेंट्स। तो अब मैं सभी प्रतिभागियों से ये आग्रह करूँगा कि अपने विषय में परिचय दें, ताकि फिर हम इस कंटेस्ट को आगे बढ़ाएं। ये प्रतिभागी नंबर 1 अपने विषय में बताएं, अपना नाम एंड योर इंट्रो यू हैव टू मेक योरसेल्फ। Hello friends, my name is Yuvraj Singh. I am in 12th standard from Vivekanand College, Darwara, Chandpur. ये हैं हमें आज के प्रतिभागी मिस्टर युवराज सिंह, और ये विवेकानंद कॉलेज चांदपुर से यहाँ पर पधारे हैं। इनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सो नाउ वी मूव टू सेकंड पार्टिसिपेंट, सो प्लीज मेक योर इंट्रोडक्शन बिफोर अस। Hi, this is Kanak Chauhan. I am in 12th class. I am from Rakhi Memorial Vidya Niketan Inter College, Afzalgarh. हमारे बीच में द्वितीय प्रतिभागी कनक चौहान, ये राखी मेमोरियल इंटर कॉलेज अफजलगढ़ से हमारे बीच में पधारी हैं। इनका भी इस मंच पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब हम तृतीय प्रतिभागी से आग्रह करेंगे कि वो अपना परिचय स्वयं दें। Hello everyone, this is Muskan Sharma. I read in class 11th in Lala Kedarnath Saraswati Balika Vidya Mandir, Dhampur. Third participant among us from Lala Kedarnath Balika Inter College, she is Muskan Sharma. So now we move to contest number 4. Please make your introduction yourself. Hello friends, my name is Nikhil Malik from BI Chopri School, Ratpur Road, Bisnor. I am studying in class 12. It is Mr. Nikhil Malik. She is from VSC College, Bijnor, and now after passing the 5th contestant, we move to the last one. Please make your intro yourself, the last participant here. Myself, Mohammad Saad Khan from grade 9, VK International School, Naitaur. It is Mr. Saad. He is from VK International School, Naitaur. So after the introduction of all these participants, जो मंच पर यहाँ शोभायमान हैं, ये हमारे 5 प्रतिभागी, इन्होंने अपना परिचय दिया। हम सब लोग इनसे परिचित हुए कि ये किस कक्षा में पढ़ते हैं एंड व्हाट इज़ देयर स्कूल एंड विच सिटी दे आर रिप्रेजेंटिंग बिफोर अस। इस इंट्रोडक्शन के बाद आई शुड टेल यू ऑल अबाउट द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो इन दिस कंप्लीट राउंड. In this round, total 15 questions will be asked from you people, and you have to make the best answer out of those 4 options that will put before you of each and every question. If you make correct answer, you will gain 20 points. But if by the way you come to a wrong answer, you have to lose 10 points. So be very careful while making your answers, because these are the marks that will bring you to the semi-final, or you won't be able to go there. So the marks count. So you have to be very, very careful regarding your answer. The answer must be best and the perfect one. So I think all of you might have followed my instructions. And when I read the question, also make 4 options of the question. And when I say आपका समय शुरू होता है अब, और your time starts now, only then you will put the buzzer. केवल उसके बाद ही आप बजर दबाएंगे। यदि किसी ने भूलवश बजर मेरे इंस्ट्रक्शन से पहले दबा दिया तो उस प्रतिभागी को 10 अंकों से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए ऐसी भूल ना करें कि आपको ऐसा सामना करना पड़े। सो आफ्टर लिसनिंग टू मी व्हेन आई से योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, और आपका समय शुरू होता है अब, ओनली देन यू पुट द बजर। एंड हुसेवर पुट द बजर फर्स्ट, जो भी प्रतिभागी सबसे पहले बजर दबाएगा उसी को उस प्रश्न का उत्तर देने का सुअवसर प्राप्त होगा। इसलिए आपकी आंखें मॉनिटर पर और आपकी उंगली आपके बजर पर होनी चाहिए, ताकि आप ही वो सबसे पहले प्रतिभागी हों जिसको उस प्रश्न का उत्तर देने का सुअवसर प्राप्त हो। सो नाउ आई थिंक नाउ इज द टाइम आफ्टर दिस कंप्लीट discussion, we should start to our final one, and that is the questionnaire. So before coming to you,
I welcome all of you and I wish you best of luck. Yes, contestants. Now I am moving towards the very first question. So be attentive and put your eyes over your monitor sets. And now the very first question of the round comes before you. Yes, the very first question is, with which game does Davis Cup associated? With which game does Davis Cup associated? And your options are A. Hockey, B. Table tennis, C. Lawn tennis, and D. Polo. The Hindi version of the question is, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? और इसके 4 ऑप्शन है, ए हॉकी, बी टेबल टेनिस, सी लॉन टेनिस, डी पोलो. आपको बताना है कि ये डेविस कप इन 4 खेलों में से किस खेल से संबंधित है और आपका समय शुरू होता है अब. इट इज कंटेस्ट नंबर 4 मिस्टर निखिल who has put the buzzer very first, and it is the very first question. So Mr. Nikhil, I want to know what according to you the correct and the best answer to this question. आपके विचार से इसका सही उत्तर, सही ऑप्शन क्या है, आप हम सबको बताएं. According to me, its answer is B. निखिल ने इसका सही ऑप्शन बताया बी. निखिल के अनुसार डेविस कप टेबल टेनिस से संबंधित है. लेट्स सी whether he has make the correct answer and how far is correct by making the answer table tennis. Sorry Nikhil, by the way your answer is wrong. The correct option is C, lawn tennis. डेविस कप लॉन टेनिस नाम के खेल से संबंधित है और ये अपने आप में बहुत प्रचलित खेल है पूरे विश्व में. इंडिया में भी बहुत से हमारे प्लेयर्स हैं जो इस खेल में पूरे विश्व में अपने डंका बजाए हुए हैं. So sorry Nikhil, by making the wrong answer you have lost 10 points the very first question. लेकिन नहीं, अभी बहुत लंबा इम्तहान है और आप अच्छा सोचें, सही आंसर दें. आफ्टर दिस फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड. प्लीज बी अटेंटिव टू योर सेट्स. एंड द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द राउंड इज, यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन. यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन. द ऑप्शंस आर ए लोकसभा, बी राज्यसभा, C, joint session of parliament, and D, meeting of the union cabinet. These are the 4 options of the question. Now I move to the Hindi version of the question. केंद्रीय बजट सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? प्रश्न पर ध्यान दें. केंद्रीय बजट सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है और इसके 4 ऑप्शन हैं. ए लोकसभा में, बी राज्यसभा में, सी संसद की संयुक्त सभा में, डी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में. The second contestant, Kanak Chauhan, she has put the buzzer before the instruction goes to all. बिना अभी निर्देश के आपने बजर दबाया, इसलिए मैं आपसे बताऊंगा कि आपने 10 अंक खोए हैं. प्लीज़ बी अटेंटिव. सभी प्रतिभागी इस विषय में सावधान रहें कि बिना मेरे इंस्ट्रक्शन के आप बजर नहीं दबाएंगे, जैसा मैंने आपको शुरू में निर्देशित किया था. प्रश्न आपके समक्ष है, केंद्रीय बजट सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शंस भी आपके समक्ष हैं. लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद की संयुक्त सभा में और केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में. आपको इन 4 ऑप्शन में जो सबसे अच्छा ऑप्शन है उसको बताना है और आपका समय शुरू होता है अब. इट इज द फर्स्ट पार्टिसिपेंट, फर्स्ट दैट इज युवराज सिंह. ही हैज मेड हिज अटेम्प्ट दिस टाइम. युवराज सिंह, ये 4 जो विकल्प आपके सामने रखे हुए हैं इस क्वेश्चन के, आप बताएं कि आपके विचार से इसका जो सही और बेस्ट ऑप्शन कौन सा है इस प्रश्न का. ऑप्शन ए लोकसभा. युवराज सिंह कहते हैं कि इनके विचार से केंद्रीय बजट सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है. देखते हैं इन्होंने इनका प्रयास कहाँ तक उत्तम है. द आंसर मूव्स टू यस, ही हैज मेड द करेक्ट आंसर. सो मिस्टर युवराज, by making the correct answer you have gained 20 points. इन्होंने सही उत्तर दिया दूसरे प्रश्न का और इसलिए इनको 20 अंक मिले इस सही उत्तर देने के लिए. आपने क्या आपकी रुचि इस पॉलिटिकल साइंस विषय में है? क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन और राजनीति संबंधित प्रश्न है. मैं जानना चाहूँगा युवराज, आपने इसका उत्तर लोकसभा ही क्यों छाटा इन 4 ऑप्शन में से?
सर मेरी रुचि सब्जेक्ट में नहीं है, पर मेरे पापा बताते रहते हैं, वो बार बार फोर्स करते हैं कि न्यूज़ देखो न्यूज़ देखो। मेरी रुचि हिस्ट्री में है। बहुत अच्छा। आपके पापा आपको न्यूज़ देखने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं आपके साथ साथ आपके पिता को भी साधुवाद बोलूँगा कि वो अपने बेटे को एक सही मार्गदर्शन देते हुए और पेपर पढ़ने के विषय में प्रेरित करते हैं। ये एक बहुत सशक्त और अच्छा माध्यम है जीके को रीच करने का। चलिए, आपने उनकी प्रेरणा से 20 अंक अर्जित किए प्रश्न का सही उत्तर देकर। तो अब चलते हैं अगले से तीसरे प्रश्न की ओर। कृपया सब सावधान हो जाएं। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्रेस्क्राइब्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स prescribed in Indian Constitution? And the options are: first, Supreme Court; B, Parliament; C, Constitution; and D, President. Now these are the 4 options, and the Hindi version of the question is, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकार, एक बार पुनः द्वितीय प्रतिभागी कनक ने फिर बजर दबाया बिना निर्देश की प्रतीक्षा किए हुए। मुझे खेद के साथ कहना पड़ा है कि उन्होंने दूसरी बार भी 10 अंक खोए हैं। कृपया सावधान रहें। अंक खोने की अपेक्षा इसको पाने का प्रयास करें और प्रतीक्षा करें मेरे निर्देश का। सो द क्वेश्चन यू हैव ऑलरेडी रेड इट, सभी ने इसको पढ़ लिया है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट, संसद, संविधान, राष्ट्रपति। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इट इज द कंटेस्टेंट नंबर 3, मुस्कान शर्मा, हु हैज मेड द अटेम्प्ट दिस टाइम। एंड सो मुस्कान, ये संविधान से संबंधित प्रश्न है। आप बताएंगे कि आपके विचार से इसमें कौन सा उत्तर अपने आप में सर्वोत्तम है? सर, ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट। मुस्कान कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। देखते हैं, इन्होंने बहुत एक कॉन्फिडेंट होकर इसका उत्तर दिया है। देखते हैं कि इनका उत्तर किस सीमा तक सही है। एंड द आंसर इज वेरी करेक्ट। वेरी करेक्ट आंसर। एंड सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ ऑल आवर फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, वह हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, ऐसा मुस्कान ने कहा। और ये सही उत्तर देकर मुस्कान 20 अंक अर्जित करने में सफल रही। मुस्कान, आप इस सही उत्तर तक कैसे पहुंची? कहां से आपको ये जानकारी हुई? सर, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। क्या ऐसा विषय है आपके कोर्स में? नहीं, 10th में सिविक्स होती है तो मैंने उसमें पढ़ा था। अच्छा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सिविक्स, जिसको हम समाज शास्त्र बोलते हैं, नागरिक शास्त्र बोलते हैं, उसमें इन सभी प्रश्नों का, नागरिकों के अधिकार, संविधान, संवैधानिक अधिकार, सभी का विस्तार में वर्णन होता है। देखिए, आपका ज्ञान आज यहाँ काम आया और आपने उसके बलबूते पर 20 अंक अर्जित किए। इसी प्रकार मुस्कान के लिए एक बार फिर तालियां। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. So now be attentive to your screen. Which artist played the role of Pakistani reporter in the film Bajrangi Bhaijaan? Now it's a very interesting question put before you on the monitor sets. क्योंकि आजकल के युवा खेलों में और फिल्मों में, दोनों चीज़ों में अतिरिक्त रुचि रखते हैं और यही एक रुचिकर प्रश्न आपके सामने है। Which artist played the role of Pakistani reporter in the film Bajrangi Bhaijaan? And the options are: A, Salman Khan; B, Nawazuddin Siddiqui; C, Om Puri; D, none of these. In हिंदी वर्जन, बजरंगी भाईजान जो एक बड़ी प्रसिद्ध फिल्म रही है, बजरंगी भाईजान फिल्म में पाकिस्तान के रिपोर्टर की भूमिका किस कलाकार ने निभाई? आपको इन 4 ऑप्शन बताना है। ए, सलमान खान; बी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी; सी, ओम पुरी; डी, इनमें से कोई नहीं। मैं अब आपसे बोलूँगा, आपका समय शुरू होता है अब। डोंट मेक सो मच हरी, आई हैव ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड यू contestant about this question. So now it is the contestant number 4, Mr. Nikhil. He has made the attempt
टू आंसर दिस क्वेश्चन निखिल, क्योंकि ये अपने आप बड़ा रुचि का प्रश्न है और मैं समझता हूँ कि सभी प्रतिभागियों को इसके विषय में ज़रूर जानकारी होगी, क्योंकि अपने आप में एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके अनुसार इन 4 ऑप्शन में कौन सा विकल्प सही है? सर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। According to Nikhil, it is option number B. Nawazuddin Siddiqui played the role of Pakistani news reporter in this film बजरंगी भाईजान। देखते हैं इनका फिल्मी ज्ञान कितना अधिक है निखिल का, और आगे बढ़ते हैं इसके उत्तर की ओर। यस, पहली बार निखिल चूक गए थे, लेकिन अब के उन्होंने सही निशाना, सही तीर सही निशाने पर लगाया है। उनके अनुसार जो ये आंसर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इट्स अ वेरी करेक्ट आंसर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस फिल्म में बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया था, और जिन्होंने फिल्म देखी है निश्चित रूप से उन्होंने इसके रोल को सराहा होगा। आप निखिल बताएंगे कि आप फिल्मों में क्या और क्यों आपकी रुचि है? सर कभी कभी देख लेता हूँ, मतलब टाइम पास के लिए। कोई अच्छी मूवी आती है या फिर मतलब कोई बढ़िया मूवी है तो देख लेते हैं, लेकिन मैं लगातार नहीं देखता या डेली नहीं देखता। अच्छी मूवी आपके अनुसार किसे कहा जा सकता है? सर जिसकी स्क्रिप्ट बढ़िया हो। जिसकी स्क्रिप्ट बढ़िया हो, एक्टिंग बढ़िया हो, स्क्रिप्ट बढ़िया हो, सब कुछ बढ़िया हो, उसे हम बढ़िया फिल्म की श्रेणी में रखेंगे। खैर, यू आर वेरी राइट टू से यस। सभी चीज़ों में विद्यार्थी की रुचि होनी चाहिए, ताकि वो हर चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में अगर उससे जानकारी ली जाए तो उसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले। सो बधाई एक बार फिर इन चतुर्थ को। तो नाउ इन दिस क्वेश्चन वी मूव टू द अदर question, that is question number 5. Please be attentive to your screen. And the question number 5 is, who is the Chief Minister of Uttarakhand, one of the state of India, and who is the Chief Minister of Uttarakhand? You have to make the 4 answers, 4 options here. Mr. Trivendra Singh Rawat, B. Mr. Harak Singh Rawat, C. Mr. Ramesh Pokhriyal Nishank, and D, that is B. C. Khanduri. The Hindi version of the question is, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम पर है। ऑप्शन नंबर A त्रिवेंद्र सिंह रावत, B हरक सिंह रावत, C रमेश पोखरियाल निशंक, D B C खंडूड़ी, भुवन चंद खंडूड़ी। सो आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, और आपका समय शुरू होता है अब। यस, इट इज contest number 1 that युवराज सिंह who has put the budget now. तो युवराज सिंह आप इन 4 ऑप्शन बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम पर है। आप बताएं आउट ऑफ यू व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर A त्रिवेंद्र सिंह रावत। निखिल कहते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से आप इस उत्तर तक पहुँचे इन 4 ऑप्शंस में से? सर मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। न्यूज़पेपर, वंस अगेन न्यूज़पेपर इज वेरी हेल्पफुल टू यू टू मेंटेन योर जीके। देखते हैं कि निखिल ने ये सही उत्तर दिया है या नहीं। यस, ही हैज मेड अ वेरी करेक्ट आंसर। त्रिवेंद्र सिंह रावत इज एट प्रेजेंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। हमारे बिल्कुल पड़ोस की, यूपी के पड़ोस की स्टेट है उत्तराखंड, और मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत इसके चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। युवराज, इस बार पुनः आपने एक सही उत्तर दिया है, और ये सही उत्तर देकर आपने अर्जित किए हैं 20 अंक। बढ़ते हैं आगे की ओर इस पायदान पर, और यह है आपकी 6ठी पायदान। इट इज द 6th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। पे अटेंशन टू दिस एंड द क्वेश्चन इज, हु इज द विनर? Who is the winner team of IPL 2019? Who is the winner team of IPL 2019? And the options are A. Chennai Super Kings, B. Mumbai Indians, C. Royal Challengers Bangalore, and D. Kolkata Knight Riders. These are the 4 options before you. IPL 2019 की विजेता टीम कौन सी है? IPL 2019 चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, और डी है आपका कोलकाता नाइट राइडर्स। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इट इज
once again contestant number 4 is निखिल। निखिल, ये आपके सामने प्रश्न है, IPL 2019 की विजेता टीम कौन सी है? आपको बताना है कि इन 4 टीम जो जिनके ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा सही उत्तर है, कौन सी IPL 2019 की विजेता टीम है? मुंबई इंडियंस बी। निखिल कहते हैं कि उनके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुंबई इंडियंस। देखते हैं इनका क्रिकेट के ज्ञान में कहाँ तक ये आगे बढ़े हुए हैं। उस उत्तर से सिद्ध होगा एंड द करेक्ट आंसर इज मुंबई इंडियंस। निखिल, आप हम सबको बताएंगे कि क्रिकेट से आपका जुड़ाव कैसा और क्यों हुआ? आपको ये खेल इतना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि मैं खुद भी खेलता हूँ ना, इसको खेलता भी हूँ और पसंद भी करता हूँ। केवल क्रिकेट ही है जो मैं खेल लेता हूँ। क्रिकेट आपका पसंदीदा खेल है जी। और आजकल लगता है कि और खेलों के मुकाबले सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार टीवी के द्वारा और दूसरे माध्यमों के द्वारा इसी खेल का होता है। हालांकि और भी खेल विश्व में बहुत लोकप्रिय हैं। आप बताएंगे कि विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? हॉकी है शायद। जी नहीं, मैं आपके ज्ञान में इजाफा करूं। जी। फुटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर गेम ऑल ओवर द नहीं वर्ल्ड। सर, मैं और मतलब जान इतनी वो नहीं रखता हूँ। मैंने केवल आपसे जानकारी ली। आपने पहले ही बता दिया है कि क्रिकेट आपका सबसे पसंदीदा खेल है, लेकिन क्योंकि आपकी रुचि खेलों में है इसलिए मैंने आपसे एक विशेष आग्रह किया जी। इस प्रश्न को बताने का। तो फुटबॉल जो है विश्व के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध खेलों में से एक है और अगर आप इसके विषय में पढ़ें तो सबसे ज़्यादा पैसा भी खिलाड़ी दुनिया में इसी खेल से अर्जित करते हैं, फुटबॉल से। सो नाउ वी मूव टू द फर्दर क्वेश्चन। प्लीज नाउ बी अटेंटिव टू योर मॉनिटर सेट्स। Question number 7. It is the question in Moradabad region. In Moradabad region, which place is famous for making paint brushes? In Mandal Moradabad, which place is famous for making paint brushes? And your options are A. Bijnor, B. Sambhal, C. Sherkot, D. Amroha, and the Hindi option is मंडल मुरादाबाद में पेंट ब्रश बनाने के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? हिंदी में आप सब इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। एंड द 4 ऑप्शंस आर A. बिजनौर, B. संभल, C. शेरकोट और D. अमरोहा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। आपको बताना है कि कौन सा स्थान पेंट ब्रश बनाने के लिए मुरादाबाद मंडल में प्रसिद्ध है। आपका समय शुरू होता है अब। वेरी नाइस। इट इज द कंटेस्ट नंबर 2, दैट इज कनक चौहान। आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो 4 ऑप्शन इस प्रश्न के आपके सामने हैं, बिजनौर, संभल, शेरकोट, अमरोहा, आपके विचार से कौन सा स्थान इसमें उचित आंसर होगा इस क्वेश्चन का? Sir, according to me, C is right, Sherkot. Kanak says Sherkot is the place that is known throughout the Moradabad region for making paint brushes. देखते हैं क्योंकि कनक 2 बार गलत बजर दबाकर अंक खो चुकी हैं। देखते हैं वो आपके सही उत्तर से अंक कमाती हैं या नहीं। यस, शेरकोट इज द वेरी करेक्ट आंसर और हमारे बिल्कुल पास का एक कस्बा है शेरकोट। और सभी लोग जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि यहाँ के बने हुए जो पेंट ब्रशेस हैं ये एक्सपोर्ट होते हैं, विदेशों में इनकी सप्लाई होती है और शेरकोट इसलिए इसमें बहुत नाम कमाए हुए हैं पेंट ब्रशेस बनाने में। So now this time Kanak, you have won 20 points by making the correct answer of this question. आपको एक बार फिर बधाई कि आपने सही उत्तर देकर 20 अंक अर्जित किए हैं। So my dear contestants, now in the same way by making correct answer go on earning 20 points. So we move to the very next question. Now be alert once again. It is question number 8, the last question of this first break. After a break then we will go for next questions. And the question is, which actor won the Dada Saheb Phalke Award in September 2019? Again the question is from Bollywood. So which actor won the Dada Saheb Phalke Award in September 2019? And your options are A. Dharmendra, B. Jitendra, C. Amitabh Bachchan, D. Vinod Khanna. These are the 4 options and we come to a Hindi version of the question.
सितंबर 2019 में किस अभिनेता ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता? और इसके 4 विकल्प आपके सामने हैं। आ धर्मेंद्र, ब जितेंद्र, स अमिताभ बच्चन और द विनोद खन्ना। दीज आर द 4 नेम्स। इसके बारे में आपको बताना है कि किस अभिनेता ने दादा साहब फाल्के, एक बहुत उच्च पुरस्कार है फिल्मी दुनिया के क्षेत्र में, ये 4 में से किस कलाकार ने जीता? और आपका समय शुरू होता है अब। इट इज़ वंस अगेन पार्टिसिपेंट नंबर 4 निखिल ने अब के फिर बजर दबाया और उन्होंने सबसे पहले इन प्रतिभागियों में से बजर दबाने का कार्य किया। निखिल, मैं जानना चाहूँगा कि दादा साहब फाल्के जो एक सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में जाना जाता है फिल्मी दुनिया में, इन 4 कलाकारों में से किसने इसको सितंबर 2019 में अर्जित किया? अमिताभ बच्चन। According to Nikhil, the correct option is C, that is Amitabh Bachchan. So let's see कि how far is correct to make his option correct. देखते हैं। Yes, Nikhil is once again made a very correct answer. अमिताभ बच्चन अभी ये पीछे काफ़ी सुर्खियों में था ये समाचार। आप अगर टीवी स्क्रीन पर या रोज समाचार पत्र पढ़ते हैं, आपको ज़रूर पिछले हफ्तों में ये पढ़ने को मिला होगा। इसकी काफ़ी चर्चा रही इस नाम के। अमिताभ बच्चन ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीता इस सितंबर 2019 में। तो सही उत्तर देकर निखिल ने फिर अर्जित किए 20 अंक और इसी प्रकार से निखिल अब अंकों में आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मैं और सभी प्रतिभागियों से भी ऐसी आशा करूंगा कि वो सही उत्तर देकर, अभी कई प्रश्न शेष हैं और वो अंकों की श्रेणी में आगे ही बढ़ते जाएंगे। सो आफ्टर दिस पर्टिकुलर 8 क्वेश्चंस राउंड वी विल गो फॉर अ स्मॉल ब्रेक। अब छोटे से ब्रेक के लिए जाएंगे और आप सब लोग कहीं ना जाएं, क्योंकि इसके बाद किसने कितने अंक पाए या कितने अंक खोए इसकी चर्चा ब्रेक के तुरंत बाद करेंगे। आप लोग कहीं ना जाएं, हम आते हैं ब्रेक के तुरंत बाद। धन्यवाद। अभी तक आपके लिए लाया है हेल्थ केयर। ये कार्यक्रम आपको देगा आपकी हेल्थ से जुड़े सवाल और नामी ग्रामी डॉक्टर्स के जवाब। तो आइए उठाते हैं स्वास्थ्य लाभ और देखते हैं हेल्थ केयर। ब्रेक के बाद पुनः सभी प्रतिभागियों का अभी तक चैनल के इस मंच पर अभिवादन और धन्यवाद। सभी प्रतिभागियों को उन्होंने क्या अंक अर्जित किए इसके विषय में जानने की जिज्ञासा होगी। तो हमारे इस पहले भाग के जो राउंड के अंक हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। कंटेस्टेंट नंबर 1 दैट इज मिस्टर युवराज सिंह, ही हैज अर्न्ड 40 पॉइंट्स। इन्होंने 40 पॉइंट अर्जित किए। कंटेस्टेंट बी कनक चौहान, इन्होंने एक सही उत्तर दिया था, लेकिन क्योंकि 2 बार इन्होंने बजर दबाया इस कारण से इनकी अभी अंक की संख्या 0 है। आगे आशा है कि आप सही उत्तर देकर अंक श्रेणी में आगे बढ़ती जाएंगी। कंटेस्टेंट नंबर 3 मुस्कान शर्मा, इन्होंने अर्जित किए हैं 20 अंक इस पहले भाग में। चौथे प्रतिभागी हैं मिस्टर निखिल, जो इस दौड़ में सबसे आगे हैं। इन्होंने अर्जित किए हैं 50 अंक इस पहले पार्ट में। क्योंकि 5 प्रतिभागी अत्यावश्यक कारणों से अनुपस्थित रहे हैं, तो अब आता है छठे प्रतिभागी का नाम साद अहमद। साद अहमद अभी तक किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए हैं, तो इसीलिए इनके खाते में अभी कोई अंक नहीं आया है। मैं उनसे आग्रह करूंगा और आशा करूंगा कि वो अभी इस जो शेष भाग है प्रश्नोत्तरी का, इसमें सही उत्तर देकर अंक अर्जित करें साद अहमद। तो प्रतिभागियों फिर बढ़ते हैं आगे की ओर प्रश्नावली के अगले प्रश्न पर। तो आप सभी लोग अपनी आंखें अपने स्क्रीन पर गड़ा दें। एंड नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ प्लीज बी अलर्ट एंड लुक एट योर मॉनिटर स्क्रीन्स। Which automobile company uses this logo? Which automobile company uses the logo? One logo is made there on the screens. Just see it, and the options are A. Honda, B. Hyundai,
C Toyota, D Tata. These are the 4 options of this logo, and the Hindi version is कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी इस लोगो का प्रयोग करती है। नीचे एक लोगो बना है, उसको ध्यान से देखिए, उस पर ही आपको अपना उत्तर देना है। ऑप्शंस हैं A होंडा, B हुंडई, C टोयोटा, D टाटा। दीज आर द 4 ऑप्शंस। आपको बताना है कि लोगो कौन सी कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी इसका प्रयोग करती है। आपका समय शुरू होता है अब। मिस्टर निखिल, next time you will have to lose the marks if you make this kind of haste in your answer of putting the buzzer. Please be alert. I have already told you, जब तक मैं आपको यहाँ से निर्देश ना दूँ तब तक आप बजर नहीं दबाएंगे। और इस जल्दबाजी से हमारे कंटेस्टेंट निखिल ने खोए हैं 10 अंक। मैं क्वेश्चन को फिर दोहराता हूँ, कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी इस लोगो का उपयोग करती है। लोगो आप सबने देखा, ऑप्शंस भी आपने जाने, होंडा, हुंडई, टोयोटा और लास्ट है डी टाटा। समय शुरू होता है अब। दिस इज मोहम्मद साद। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ही हैज पुट द बजर, सो वी थिंक दैट वी हैव टू गिव द चांस। इट इज फर्स्ट अटेम्प्ट। लेट्स सी हाउ फार इज करेक्ट टू मेक हिज आंसर। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं साद अहमद। आप बताएंगे कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा आपके विचार से उचित उत्तर है कि ये लोगो कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी यूज करती है। आप अपना उत्तर बताएं। सर बी ह्यूंडई। साद अहमद कहते हैं कि जो लोगो बना हुआ है एच की तरह से, ये हुंडई ऑटोमोबाइल कंपनी इसका अपने जो भी प्रोडक्शंस हैं उसमें उपयोग करती है। देखते हैं कि इन्होंने पहली बार उत्तर देने का प्रयास किया है, इनका प्रयास कहाँ तक सफल है। यस, वेरी करेक्ट आंसर। दैट इज हुंडई। जो हुंडई कंपनी है, ये ऑटोमोबाइल कंपनी अपने उसमें जो उत्पादन है उसमें इस लोगो का प्रयोग करती है। क्योंकि पहली बार इन्होंने उत्तर दिया और वो उनका उत्तर सही है। इनके लिए एक बार पुनः तालियां। बाय मेकिंग करेक्ट आंसर, साद अहमद, यू हैव अर्नड 20 पॉइंट्स एंड आई होप दैट इन फ्यूचर ऑल्सो बाय मेकिंग द करेक्ट आंसर ऑफ अदर क्वेश्चंस यू विल गो ऑन अर्निंग 20 मोर पॉइंट्स। सो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। नया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, कृपया उसको देखें। It is your question number 10. The question is, in which sports is Pankaj Advani world champion? Keep your eyes there. In which sports is Pankaj Advani world champion? And the options are A poker, B carom, C billiards and D chess. These are the 4 options of the question. We move to the Hindi version of this question. पंकज आडवाणी विश्व चैंपियन किस खेल से संबंधित हैं। पंकज आडवाणी ने किस खेल में विश्व चैंपियनशिप अर्जित की है। आपके ऑप्शन है आ पोकर, बा कैरम, सी बिलियर्ड्स और द शतरंज। ये 4 ऑप्शन हैं। आपको जानना है कि इस 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपके विचार से करेक्ट है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 4 ऑप्शन हैं, ध्यान से इनको देखिए। पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित हैं। पोकर, कैरम, बिलियर्ड्स और शतरंज। बहुत प्रसिद्ध नाम है पंकज आडवाणी, कई बार न्यूज़ में और समाचार पत्रों में छाया रहता है। अपनी ज्ञान की उस पर जोर दीजिए और कुर्सी में से सही आंसर निकालिए। पोकर, कैरम, बिलियर्ड्स और शतरंज। देखिए कहीं आपने पढ़ा हो, सुना हो, जाना हो कि पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है, किस खेल में उन्होंने विश्व चैंपियनशिप अर्जित की है। गेम्स हैं पोकर, कैरम, बिलियर्ड्स और शतरंज। ऐसा जान पड़ता है कि इन 5 प्रतिभागियों में से किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानकारी है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताऊंगा कि इसका सही ऑप्शन है सी बिलियर्ड्स। ये बड़ा जाना माना नाम है पंकज आडवाणी का। बिलियर्ड्स में इन्होंने बहुत इनाम, बहुत पुरस्कार अर्जित किए हैं और ये विश्व चैंपियनशिप भी इनके नाम रही है। पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स के इंडियन चैंपियन है ये। सो आफ्टर दिस क्वेश्चन, जिसका उत्तर इनमें कोई प्रतिभागी नहीं बता पाया, यहाँ पर 5 कंटेस्टेंट मंच पर शोभायमान हैं। मैं चाहूँगा कि कंटेस्टेंट नंबर 3 मुस्कान, आप बताएं कि आपकी रुचि किस विशेष स्ट्रीम पर है, पढ़ाई के, खेलकूद के, किसी और इसमें आपकी विशेष रुचि हो, इसकी जानकारी हम सबको दें। सर मुझे सब्जेक्ट्स में मेरा हिस्ट्री फेवरेट है और मुझे इसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। हमारे पास ज्ञान अर्जित करने के बहुत विषय हैं। इस समय 47 विषय जो हैं रजिस्टर्ड हैं।
जैसा मुस्कान आपने कहा कि आपका प्रिय विषय इतिहास है, उस इतिहास के विषय में एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है, हिस्ट्री मेक्स अ मैन वाइज। केवल इतिहास ही ऐसा विषय है जिसके बारे में कहा जाता है कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। तर्क यह है कि हम अपने पूर्वजों के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने अच्छे कार्य किए थे, उसको हम अपनाते हैं, और हमारे पूर्वजों से भूल या गलतियाँ हो गई उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है हिस्ट्री मेक्स अ मैन वाइज। अच्छा, आप उससे और बुद्धिमान बने उसके अध्ययन से, ऐसी मेरी कामना है। सो नाउ वी मूव टू द फर्दर क्वेश्चन एंड प्लीज बी अटेंटिव नाउ। क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज योर मार्कर सेट्स इज विच म्यूजिक माइस्ट्रो has won the most number of Filmfare Awards for Best Music Director. For Best Music Director, just learn the question, and the options are A. A.R. Rahman, B. Anu Malik, C. R.D. Burman, and D. Himesh Reshammiya. Now we come to the Hindi version of this question. किस संगीत उस्ताद ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता है? किस संगीत उस्ताद ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के रूप में फिल्म फेयर अवार्ड जीता है? और आपके ऑप्शंस हैं A. आर रहमान, B. अनु मलिक, C. R.D. बर्मन, D. हिमेश रेशमिया। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि आपके विचार से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Yes, it is contestant number 2, that is Kanak Chauhan, and she has tried to make the answer. कनक ने बजर दबाया। कनक के 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, A.R. रहमान, अनु मलिक, R.D. बर्मन और हिमेश रेशमिया। आप बताएंगे कि आपके विचार से इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन उचित और सही है? सर आंसर नंबर बी इज राइट, अनु मलिक। She says, Kanak says that yes, answer number B, option number B, Anu Malik is the correct one. जिसने फिल्म फेयर अवार्ड एक संगीत निर्देशक के रूप में सर्वाधिक बार जीते हैं। देखते हैं कि कनक का प्रयास कहाँ तक उचित है, ये आंसर मूव करके देखते हैं। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A.R. रहमान, दैट इज द करेक्ट आंसर। Option number A is correct. A.R. Rahman is a very famous name among the music directors in India nowadays. Sorry, Kanak, your option was not correct. So you have lost 10 points by making the wrong answer. कोई बात नहीं, अभी सब कुछ क्वेश्चन बाकी हैं। आपका प्रयास सराहनीय है और इसके इस सराहनीय प्रयास की हम सराहना करते हैं तालियों के साथ। संगीत में कुछ रुचि है कनक का, आपकी कुछ विशेष रुचि? यस सर। क्यों ऐसा संगीत ऐसा विषय क्यों है जो चुना आपने जिसमें आपकी रुचि विशेष है? सर म्यूजिक मेरे अकॉर्डिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे सुनकर मूड चेंज हो जाता है। अगर नर्वस हो, अगर मोटिवेशनल म्यूजिक चल रहा है तो इंस्पायरेशन कहीं ना कहीं से मिल जाती है। बहुत अच्छा कहा आपने। म्यूजिक कहा जाता है कि मनुष्य की आत्मा से जुड़ा हुआ है और हमारे इतिहास में बहुत उच्च कोटि के संगीतकार हुए हैं जिन्होंने विश्व में अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में नाम कमाया है। जैसे आपके बांसुरी वादक बिस्मिल्लाह खान रहे, जिनको भारत रत्न की उपाधि भी मिली। आपकी प्राचीन उसमें हमने मुगल पीरियड में तानसेन का नाम सुना, जिनके बारे में कहा जाता है अपने राग से दीप जला देते थे, बारिश करा देते थे। ऐसे प्रसिद्ध और एक अविस्मरणीय हमारे बीच में संगीतकार हुए हैं भारत की भूमि पर। आपका प्रयास था, हालांकि ये प्रयास सफल नहीं हुआ और आपको इसलिए 10 अंक होने पड़े। एंड द करेक्ट आंसर इज A.R. रहमान। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 एंड द क्वेश्चन इज इन विच फील्ड वाज आर्यभट्ट considered a genius? In which field was Aryabhatta considered a genius? And the options are A. medicine, B. mathematics, C. literature, and D. geography. The Hindi version of the question is आर्यभट्ट को किस क्षेत्र में एक प्रतिभा माना जाता है? आर्यभट्ट, इसका नाम अधिकांश ने सुना होगा, को किस क्षेत्र में एक प्रतिभा माना जाता है? और आपके इसमें ऑप्शंस हैं अ दवाइयों के क्षेत्र में,
बी बा गणित के क्षेत्र में, स साहित्य के क्षेत्र में और द भूगोल के क्षेत्र में। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है कि आर्यभट्ट इन 4 क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में एक उच्च कोटि के दिमाग थे, प्रतिभा थे। और आपका समय शुरू होता है अब। कंटेस्ट नंबर 4 वंस अगेन निखिल इज देयर इन द फील्ड और निखिल ने फिर प्रयास किया है प्रश्न का उत्तर देने का। सर अकॉर्डिंग टू मी इट्स आंसर इज बी, गणित के क्षेत्र में। गणित के क्षेत्र में यस। निखिल कहते हैं कि आर्यभट्ट ने गणित के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और ये एक महान दिमाग थे गणित के क्षेत्र में। देखते हैं कि निखिल अपने इस प्रयास में कहाँ तक सफल होते हैं और उनका ये जो उन्होंने ये ऑप्शन चुना है बी, ये कहाँ तक सही है। लेट्स मूव टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, मैथमेटिक्स, जिनको इतिहास में रुचि है, मैथमेटिक्स में रुचि है, वो सब जानते हैं आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध नाम है। सो निखिल, धन्यवाद कि आपने सही उत्तर देकर 20 अंक अर्जित किए। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर इस प्रश्नावली में। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज हु इज द फर्स्ट इंडियन वीमेन, महिलाओं के क्षेत्र की बात है। हु इज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन एन एशियन गेम्स गोल्ड इन 400 meters run, 400 meters run, and she has won gold in that 400-meter run in Asian Games. And the options are A. M.L. Valsamma, B. P.T. Usha, C. Kamalji Sandhu, and D. K. Malleshwari. So now these 4 options there. In Hindi, 400 मीटर की एशियाई खेलों का स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? और आपके सामने ऑप्शन है A. M.L. वलसम्मा, B. P.T. उषा, सा कमलजीत संधू और डी है के मलेश्वर। आपको इन 4 ऑप्शन में देखना है कि किस महिला ने एशियाई खेलों में सबसे पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। और आपका समय शुरू होता है अब। यस, इट इज कंटेस्ट नंबर 1, दैट इज युवराज सिंह। ही हैज अटेम्प्टेड, हालांकि महिलाओं के क्षेत्र में इनका दखल जानकर अच्छा लगा। युवराज, आप बताएं कि आपको इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है जो पहली भारतीय महिला है जिसने एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता? सर बी, पीटी उषा। उनके अनुसार पीटी उषा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नाउ युवराज, वी गो टू योर आंसर। देखते हैं कि आपने सही प्रश्न का सही उत्तर दिया है इस प्रश्न का या नहीं, ये इसके आंसर से जानकारी होगी। यस, दिस आंसर इज वेरी करेक्ट। दिस युवराज हैज मेड द करेक्ट आंसर एंड दिस पीटी उषा। आपको इसके उपनाम के बारे में जानकारी है? इसको किस नाम से बुलाया जाता था? नो सर। उड़न परी। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से प्रसिद्ध थी। ये इसकी दौड़ इतनी ज़्यादा, इतनी तेज़ थी कि इसको सब लोगों ने एशियाई खेलों में उड़न परी का एक खिताब, एक निकनेम उसको दिया। पीटी उषा, इसने बहुत गोल्ड अर्जित किए भारत के लिए इस दौड़ के क्षेत्र में। एक पुरुष भी हुए हैं दौड़ के क्षेत्र में, तो क्या युवराज आप बता पाएंगे कि वो भी इसी समकक्ष रहे हैं? विश्व में उन्होंने बड़े भारत के झंडे गाड़े हैं। सर यस, मिल्खा सिंह। यस, वेरी राइट टू से मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह, उसे फ्लाइंग सिख के रूप में जाना जाता है कि उड़ने वाला सिख। उसको जैसे इसको उड़न परी का एक निकनेम दिया, ऐसे मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। सो वेरी नाइस, यू हैव अर्नड 20 पॉइंट्स बाय मेकिंग द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी क्रम में आगे को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर ऑन योर मॉनिटर सेट्स, प्लीज गो टू दैट। एंड द क्वेश्चन इज, in which state would you find the source of the river Ganga? In which state would you find the source of the river Ganga? And the options are A. Uttar Pradesh, B. Uttarakhand, C. Himachal Pradesh, and D. Madhya Pradesh. Your Hindi version of the question is, गंगा नदी का उद्गम स्थल आपको किस राज्य में मिलेगा? और आपके सामने इसके 4 विकल्प हैं। A. उत्तर प्रदेश, B. उत्तराखंड, C. हिमाचल प्रदेश एंड डी मध्य प्रदेश। अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है और
उसके उत्तर देने का समय शुरू होता है अब। इट इज कंटेस्ट नंबर 3, दैट इज मुस्कान। वंस अगेन मुस्कान हैज कम टू द फील्ड। मुस्कान ने फिर इस प्रश्न के लिए उत्तर देने के लिए बजर दबाया है और लगता है कि शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, अपने आप में उनको पक्का विश्वास है कि वो इसका सही उत्तर देगी। तो हम जानना चाहेंगे मुस्कान कि आपके विचार से इन 4 ऑप्शंस में, 4 विकल्प में कौन सा विकल्प सही है? सर ऑप्शन बी उत्तराखंड। मुस्कान कहती हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड राज्य में है। देखते हैं कि उनको पड़ोसी राज्य के विषय में कितनी अधिक जानकारी है, ये इनके क्वेश्चन के उत्तर से जानकारी मिल पाएगी। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज उत्तराखंड। यस, शी हैज मेड अ वेरी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उत्तराखंड हमारे यूपी से लगा हुआ और यूपी का ही एक भाग आगे चलकर ये राज्य बना, उत्तराखंड राज्य, और बहुत सी नदियों का उद्गम इसी राज्य से है। और इस अगर आप इस विषय में जानते हो तो कुछ नदियों का संगम आगे चलकर ये गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। भिन्न भिन्न नदियाँ वहाँ से निकलती हैं उत्तराखंड से और तब वो आगे चलकर गंगा के रूप में मिलकर परिवर्तित हो जाती हैं। यस, आफ्टर मेकिंग द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव कम टू द वेरी लास्ट। हम इस प्रश्नावली श्रृंखला के अंत में पहुँच गए हैं और देखते हैं कि कौन सा प्रतिभागी इसमें विजयी आता है इस प्रश्न के, अंतिम प्रश्न के उत्तर देने में। तो मैं चाहूँगा सब प्रतिभागी अपनी आंखें इस अपनी स्क्रीन पर गड़ाएं और अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करते हुए इस अंतिम प्रश्न का सही उत्तर देकर 20 अंक अर्जित करें। सो नाउ इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन्स, प्लीज बी अटेंटिव टू इट। यस, द लास्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन of Rajya Sabha according to Constitution of India? And the options are A. Vice President, B. Prime Minister, C. President, and D. Chief Minister. The Hindi version of the question is भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, इस पर ध्यान दें, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? और आपके सामने इसके ऑप्शंस हैं, इसके विकल्प हैं आ. उपराष्ट्रपति, ब. प्रधानमंत्री, सी. राष्ट्रपति और द. मुख्यमंत्री। ये 4 ऑप्शन हैं और आपको इन 4 ऑप्शन में बताना है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सदस्य कौन होता है। ये फिर आपका सिविक्स का क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस का। अपने दिमाग पर जोर दीजिए और अपने ज्ञान के उस आधार पर इसका सही उत्तर जानने का प्रयास करें। और आपका समय शुरू होता है अब। इट इज़ कंटेस्टेंट नंबर 2, दैट इज मिस कनक चौहान। अगेन शी हैज ट्राइड टू मेक अ बेस्ट एफर्ट्स टू पुट द बजर। इन्होंने फिर अपना प्रयास किया बजर दबाकर इस प्रश्न का सही उत्तर देने का। तो कनक, आप सभी यहाँ उपस्थित प्रतिभागी और को बताएंगी कि आपके विचार से संविधान, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का इन 4 में से पदेन अध्यक्ष कौन है, कौन होता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री? सर सी इज राइट, राष्ट्रपति। कनक कहती हैं कि भारतीय संविधान अनुसार राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष है उसको एक्स ऑफिशियो जो होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। देखते हैं इनका सिविक्स का ज्ञान कितना सही है और इन्होंने कहाँ तक सही उत्तर देने का प्रयास किया है। सो वी मूव टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जस्ट टू नो हाउ फार शी इज राइट। यस, नाउ वी कम टू द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी, राष्ट्रपति इज द करेक्ट आंसर। और कनक ने बहुत सही उत्तर दिया और 20 अंक अर्जित किए उसने इस सही उत्तर को देकर। कनक, बहुत अच्छा लगा कि आपने प्रश्नावली का अंत सही उत्तर देकर किया। और इंग्लिश में सब लोग जानते हैं, कहा जाता है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। तो हमको लगता है कि ये पूरा राउंड भले प्रकार से समाप्त हुआ। आप में से 5 प्रतिभागियों में से अगर कोई प्रतिभागी अपने विषय में, अपने शिक्षा के विषय में, स्कूल के विषय में, रुचि के विषय में अगर कोई विशेष बात कहना चाहते हो तो उनका स्वागत है। सर मेरा स्कूल बहुत अच्छा है, उसमें सभी तरह की वो है क्वालिटीज़, मतलब आसपास के किसी स्कूल में नहीं है। वहाँ पे एनसीसी, स्काउट वगैरह सब चीज़ की वो है। अभी जैसे हमारे स्कूल में एनसीसी अभी नई आई हुई है, किसी स्कूल को इतना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इतना वो नहीं मिलती कि प्लेस वो आके अपने को रिप्रेजेंट करें। हमारे स्कूल में पहली बार जब फर्स्ट ईयर एनसीसी आई तो वहाँ से
एक बच्चा सेलेक्ट हुआ, वो चेन्नई OTA में गया। वो सब बच्चे के अंदर क्वालिटी थी कुछ, हमारे प्रिंसिपल कुछ ज़्यादा ही वो हैं एक्टिव। आप ये बताएंगे कि आपने ये जो एनसीसी की यहाँ पर महत्ता बताई है, एनसीसी क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इसमें ऐसा क्या विशेष आपने देखा जो आपको लगता है कि अपने आप में बड़ा एक... पहले तो मैं एनसीसी कैडेट हुआ एक, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और फिर एनसीसी हर चीज़ में, जैसे किसी में डिफेंस लाइन में ज्वाइन करना चाहते हैं कि अगर हमारे पास एनसीसी का C सर्टिफिकेट है और हम कहते हैं कि हमें ऑफिसर बनना है, तो हमें पेपर माफ होता है। सबसे बड़ी चीज़ है पेपर। बच्चे पेपर के लिए तैयारी करते हैं 1-1.5 महीना, 1-1.5 साल, किसी को 2 साल हो जाते हैं। वो अपने कई अटेम्प्ट खराब कर देता है उसके चक्कर में, और पेपर ही सबसे पहली बार पेपर ही माफ है। हमको सिर्फ इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है और फिजिकल के लिए तैयारी करनी है। और हम जैसे NDA वगैरह का देते हैं तो उसमें फिजिकल तो बिल्कुल माफ ही होता है। अगर उसका इंटरव्यू पास कर लें तो फिजिकल के लिए तो हमें टाइम मिलता है। हम 45 डेज में अपना फिजिकल भी दे सकते हैं, मेडिकल भी दे सकते हैं। अगर ओवरवेट है तो वो भी कम कर सकते हैं। ये तो आपने व्यक्तिगत उसका लाभ बताया, लेकिन जो राष्ट्रीय लाभ है वो ये है सर कि एक नई फौज तैयार होती है एनसीसी के द्वारा, जो कभी आपातकाल में देश के हित में और देश के लिए जिसका उपयोग किया जा सकता है। एनसीसी वो माध्यम है, वो है। और आपको वो जो कंसेशन मिलेगा वो B और C सर्टिफिकेट करने के बाद मिलेगा, और C सर्टिफिकेट इज द फाइनल राउंड ऑफ दिस एनसीसी। तब जाकर वो रिटन एग्जामिनेशन से आपको छूट मिलेगी। तो बहुत अच्छा आपने इसको ज्वाइन किया और एक अच्छी बात बताई। सो अब क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल राउंड का क्वेश्चनायर राउंड समाप्त हुआ, सभी प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया, अपनी प्रतिभा, अपनी विद्वता दिखाने का पूर्ण प्रयास किया। कुछ उसमें सफल हुए, कुछ उसमें सफल नहीं हो पाए। तो अब अंत में देखते हैं कि किसने कितने अंक अर्जित किए और अपने अंकों के बलबूते पर कौन 3 भाग्यशाली प्रतिभागी अगले राउंड सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल हुए और कौन उस राउंड से पहले ही इस राउंड से बाहर हो गए। इस अंक तालिका के आधार पर आप सबके समक्ष अभी रखते हैं। आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहने जाएं। धन्यवाद। अभी तक आपके लिए लाया है हेल्थ केयर। ये कार्यक्रम आपको देगा आपकी हेल्थ से जुड़े सवाल और नामी ग्रामी डॉक्टर्स के जवाब। तो आइए उठाते हैं स्वास्थ्य लाभ और देखते हैं हेल्थ केयर। ब्रेक से लौटने के बाद एक बार फिर सभी मंच पर पधारे प्रतिभागियों का स्वागत और अभिनंदन। इन 15 प्रश्नों की प्रश्नावली से जूझने के बाद हम इस अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रतिभागी अपने अपने अर्जित अंकों को जानने के विषय में बहुत उत्सुक होंगे। तो मैं इसमें सबसे पहले आप प्रतिभागियों ने जो अपनी विद्वता के आधार पर अंक अर्जित किए उसके विषय में आपको बताऊं कि इसमें अंकों की श्रेणी में सबसे नीचे हमारी कनक चौहान जो हमारी कंटेस्ट नंबर 2 हैं, इन्होंने अर्जित किए हैं 10 अंक। हालांकि ये बहुत अपने आप में उत्साही रहीं उत्तर देते विषय में, लेकिन गलती से इनसे बजर दबे जिसके कारण इनको कई अंक होने पड़े। इन्होंने अर्जित किए अंत में 10 अंक। उसके बाद इसी श्रेणी में उनसे आगे हैं मोहम्मद साद, जिन्होंने 20 अंक अर्जित किए। इन्होंने सिर्फ एक ही प्रश्न का उत्तर दिया और उसी सही उत्तर से इन्होंने 20 अंक अर्जित करने में सफलता पाई। इसके बाद ऊपर बढ़ते हैं। हमारे बीच में तृतीय प्रतिभागी हैं मुस्कान शर्मा ने अपने प्रयासों से 40 अंक पाने में सफलता अर्जित की। तालियों से उनका स्वागत। मुस्कान शर्मा जो लाला केदारनाथ बालिका विद्या मंदिर की छात्रा हैं, इन्होंने 40 अंक अर्जित किए और ये अंकों की श्रेणी में तीसरे स्थान पर रहीं। उसके बाद ऊपर बढ़ते हैं मिस्टर निखिल और युवराज सिंह और मिस्टर निखिल मलिक, दोनों ने एक समान 60 अंक अर्जित किए और इसके आधार पर ये सर्वोपरि रहे अंकों की श्रेणी में।
इनका तालियों से करते तारीफ। तो अपने विद्वता के आधार पर, प्रयासों के आधार पर और अपनी जो कुछ भी क्षमता थी उसके प्रदर्शन के आधार पर हमारे इस राउंड के 5 प्रतिभागियों में से 3 प्रतिभागी जिन्होंने मुस्कान ने 40 अंक, निखिल ने और युवराज ने 60 अंक अर्जित करके ये तीनों प्रतिभागी नेक्स्ट राउंड दे हैव कम टू द सेकंड राउंड, दैट इज द सेमीफाइनल राउंड, एंड दे हैव गॉट सक्सेस टू अचीव द second step of this competition. Now they have come to GeniusCon season 3, so they will meet us in the second round of semi-final. लेकिन प्रयास इन दोनों प्रतिभागियों के, कनक के और शाद के बहुत अच्छे रहे। इन्होंने अपने स्तर से बहुत प्रयास किया, लेकिन जैसा आपने सुना होगा कि गिरते हैं सहसवारी मैदान जंग में, एंड इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स देन टू विन और लूज़। खेलने में भाग लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने दोनों प्रतिभागियों ने बड़ी सफलता के साथ अपने प्रयास किए, इस क्वार्टर फाइनल में भाग लिया। इसके लिए इन 2 प्रतिभागियों के लिए भी तालियां। अब मैं निवेदन करूंगा मिस्टर हर्षित राजवंशी से कृपया यहाँ मंच पर आएँ, और मेरा आग्रह है कनक चौहान से वह भी मंच पर आएँ और मिस्टर हर्षित उसको एक स्मृति चिन्ह देकर उसका उत्साहवर्धन करें। मिस्टर हर्षित। So now it is the turn for Mohammad Saad. I request Mohammad Saad to come on the stage, and in the same way I request Mr. गौरव त्यागी जो हमारे चांदपुर तहसील के प्रभारी हैं अभी तक चैनल के। मेरा उनसे आग्रह कि वो मोहम्मद साद को स्मृति चिन्ह देकर उनको उत्साहवर्धन करें। मिस्टर गौरव। हमारे मिस्टर गौरव हमारे बीच में हैं और उन्होंने पूरे इस प्रतियोगिता में बहुत मनोनयन से इसको देखा, जांचा और परखा, एक पत्रकार की निगाह से भी। मैं निवेदन करूंगा अपने अभी तक चैनल के एमडी मिस्टर शरद राजवंशी से कृपया इनको स्मृति चिन्ह देकर इनका सम्मान करें। मिस्टर राजवंशी। धन्यवाद मिस्टर राजवंशी। इसी क्रम में हमारे बीच में एक मेहमान श्री टीकम सिंह जी जो प्रधानाचार्य हैं, ये हमारे बीच में प्रधानाचार्य विवेकानंद इंटर कॉलेज दरबाड़ा चांदपुर से हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कृपया मंच पर आएँ श्री टीकम सिंह जी, और सभी तालियों से उनका स्वागत करें। मैं शरद जी से जो एमडी हैं हमारे अभी तक चैनल के, उनसे निवेदन करूंगा कि श्री टीकम सिंह जी को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। मिस्टर शरद राजवंशी जी। धन्यवाद शरद जी। मेरा आग्रह अनुरोध है, हमारे बीच में प्रधानाचार्य श्री टीकम सिंह जी हैं, और क्योंकि इन लोगों का मार्गदर्शन हमेशा समाज के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होता है। मेरा निवेदन है कि इनको इन विद्यार्थियों को आशीर्वाद देकर इनका मनोबल बढ़ाएं। श्री टीकम सिंह। थैंक यू संचालक जी। या अभी तक चैनल से एमडी साहब, अन्य सभी कर्मचारी और प्यारे अभिभावक बंधुओं और हमारे संचालक जी, क्या आपने इस कार्यक्रम को चला करके हमारे समाज का नहीं बल्कि शिक्षक समाज का सम्मान किया है, और मैं आपसे आग्रह करूँगा कि कार्यक्रम आपका निरंतर चलता रहे। हम इसमें आपका सहयोग करेंगे। और प्यारे बच्चों, आपने सभी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। आपके लिए मेरी तरफ से बधाई, और आप आगे जीवन में खूब उन्नति करें, प्रोग्रेस करें। जय हिंद। धन्यवाद सर। आपके ये मूल्यवान वचन इन बच्चों को जीवन में प्रेरणा देंगे और आगे बढ़ने के लिए उत्तरोत्तर इनका मार्गदर्शन करेंगे। इसी आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात मेरा आग्रह है इन सभी पार्टिसिपेंट्स से जो अगले चरण में पहुंचने में सफल हुए, जो सफल नहीं भी हुए, हमेशा आगे बढ़ने की ललक अपने जीवन में रखें, और यही ललक आपको जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने में आपकी सहायता करती है, सफलता देती है। जो सफल होने में नहीं आ पाए
मेरा उनसे फिर आग्रह है कि नेक्स्ट ईयर इसका चौथा सीज़न आपको देखने को मिलेगा इस जीनियस कौन कार्यक्रम का। उसके लिए अभी से तैयारी करें और ये तय करके मन में रहें कि अगली बार मैं निश्चित रूप से फाइनल तक पहुंचकर उसमें विजेता बनूंगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का पुनः अभिनंदन इस कार्यक्रम में। धन्यवाद।